कौन बोला? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूं, मैं आप लोग के लिए डर रही हूं। क्या करूं? अभी तो एक अकेला दीपक है, अब इसके साथ है। समझो भाई। चलिए, टेबल मुझे भी बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं बना ही देती हूँ। वी ऑल वी आर डूइंग अबाउट द क्रॉप्स ना, मेजर क्रॉप्स विच वी हैव टू कवर। ओके, थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाते हैं, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग देख लिए, ठीक है। आई होप नॉट इट्स गुड। ओके सो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? ये फिर से काला ही आ रहा है। ओके लेट मी चेक। फर्स्ट ऑल ऑफ यू टेल मी द फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्रॉप। Just minute. After that cropping season. And then after climatic condition. Climatic condition. Who is crying in that room? It seems that someone is crying. Okay. After climatic condition, rainfall or temperature? Soil. Soil is there. Okay. After soil, we will switch over towards a temperature. Temperature in Celsius. है ना? And then after your rainfall. Rainfall in centimeter. And then after your position. Position na? Position oblique regions or area. These are the different boxes which I have already given. Isn't it? चलिए, in this we have already completed about rice. Am I right? First crop about rice we have already completed. Everything I have given you about rice. चलिए कोई बात नहीं, rice आगे बढ़ने के से पहले just I want to take a recap. Yes sir, what is the cropping season of rice? Kharif. Okay. Climatic condition? Hot and humid. After that your soil? Temperature? Above 25 degrees Celsius, already it is mentioned there. Rainfall? Okay. More than 20, sorry, just a minute. More than, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं. More than 100 centimeter. It's okay? Centimeter is already mentioned above. That's why I'm not writing. Position, I think I have already given you. Second position, reasons. Already we have completed in the previous class. And I have given you one trick also to recognize the area of wheat and area of rice. Do you remember? याद है आप लोग को? क्या बताया था मैंने ट्रिक?
How can we recognize area of a wheat? This is the spelling of wheat. What we will take? We will take a, कैसे करेंगे हम लोग वीट को रिकॉग्नाइज करने के लिए? W, isn't it? And area of rice will be recognized with the letter E. That is your rice. है ना? We have used these two methods already. E means eastern, W means western. This method we have already adopted to memorize the area. Am I right? आगे बढ़े हम लोग. Today we have to start from weight. Put it down. Who is this? सब पहले पूछ ले रहे किसका है, कहीं उसके अंदर बॉम्ब फिट होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा. छूने के पहले पहले उसको उठाएंगे नहीं, पहले पूछ लिया किसका है. उसको मैंने देखा, पहले पूछ लिया किसका है, जवाब मिला. अच्छा नहीं तो उधर ही फेंक दो. शानू भी उठती और तुमको उठा के इसी खिड़की से नीचे फेंक देती. अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना? ये अलाउड है ना? नहीं नहीं, आप लोगों को भी बोलना है. मैं से बोलूं ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी बोलना है. सिर्फ मैं बोलूंगी तब तो नीरस हो जाएगा. क्लास को हम लोग को नीरस नहीं बनाना है. लर्न विथ एंजॉयमेंट. ठीक है? तभी क्या बेटा? Rice mainly it is cultivated in the eastern region of India. Major production area is in the east only. But nowadays with the help of irrigation, शायद पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, with the help of irrigation as a commercial crop, rice is started cultivating in the state of Pakistan, Punjab and Haryana also. But it doesn't mean it is the native crop or the main crop of that region. It is minor crop of that region. Major crop of this rice is the major crop of eastern region only. Assam, West Bengal, Orissa, Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. These are the major rice producing state. Even Kerala also. ये राइस के मेजर एरियाज हैं. इसके अलावा राइस आपका कर्नाटक में भी हो रहा है, राइस आपका पंजाब में भी हो रहा है, राइस आपका वेस्टर्न यूपी में भी हो रहा है, राइस आपका हरियाणा में भी हो रहा है, इवन इन उत्तराखंड ऑल्सो. बट दैट इज नॉट द मेजर एरिया, दैट इज योर माइनर एरिया where they are cultivating rice only for commercial purpose, not for the consumption, not for the subsistence purpose. दीपक आई बात समझ में? दीपक got it? So this is the meaning of this one. नहीं बता सकते हो, अगर तुम्हारा ट्रिक बेहतर है तो you can share with us also. हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. from north east to the south east. यही तो बता रहे. नॉर्थ ईस्ट में आपका आसाम आ गया, इसके बाद हम थोड़ा सा ईस्ट में आते हैं, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी हो गया. इसके बाद हम थोड़ा और साउथ की तरफ आते हैं, उड़ीसा हो गया, और साउथ आए आंध्र प्रदेश हो गया, उसके और भी साउथ आ जाए तमिलनाडु हो गया. तो कंप्लीट वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न पार्ट, वी आर हियर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न एंड साउदर्न. मैंने चैप्टर 1 में 11th के आप लोगों को पढ़ाया था इंडियाज लोकेशन में. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 अगेन पार्ट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. भूल गए आप लोग? ठीक है. नॉर्थ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज डिवाइडिंग एरिया विच लाइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न इंडिया, एरिया विच लाइंग टुवर्ड्स द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न इंडिया. इन द सेम वे दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन डिवाइड्स इंडिया इनटू ईस्ट एंड वेस्ट. द एरिया विच आर सिचुएटेड और लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, that is called our eastern India,
and all those areas which are situated towards, say, the left hand side of standard meridian of India, that is known by, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं निर्भय, वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत. ठीक है, तो यहां पर जो राइस की खेती है, जितनी धान की खेती है, वो पश्चिमी भारत मेन रीजन नहीं है, पूर्वी भारत उसका मुख्य एरिया है. ठीक है, फिर से टॉप टू बॉटम की बात कहां से आ गई? जब हम बात कर रहे हैं पूर्वी, तो पूर्वी पूरा हो गया ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. हाँ, यस, दैट इज योर ईस्टर्न पार्ट. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थन साइड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न वेस्ट. जब हम इसकी बात करते तो कंप्लीट आ गया आपका. इट्स ओके ना? Clear to everyone? This is our rice producing area, and now we are switching over towards the next major staple crop. After rice, the next crop is wheat. ठीक है, और दुनिया में wheat के प्रोडक्शन में हमारा पोजीशन क्या है? Second. We are not in the second position. Rice second, in wheat we are not on the second position. We are on the third position. It's okay? In wheat we are not on the second position. चलिए, तो let's discuss about it. Say, what are the different area? So cropping season wheat क्या है इसका? अच्छा, book it is mentioned second. It's okay. Wheat is the crop of Rabi season. क्या है आपका ये? किस सीजन में होता है? विंटर्स में. It is shown during the month of November, December and harvested during the month of April, May. Harvested in the month of April and May. So it is the crop of Rabi season. Climatic condition. Now what type of climatic condition is required here? That is warm and dry. The climatic condition is here warm and dry. जब इसके फसलें लगती हैं, इनके अंदर दाने लगते हैं, तो इसको बिल्कुल ड्राई एटमॉस्फेयर चाहिए, वेट या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए. अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा या बारिश होगी तो उन दानों में कीड़े लग जाएंगे या फिर आपका हेल्दी ग्रेन्स नहीं डेवलप होंगे. फॉर दैट दिस ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड. इट्स ओके. नाउ कमिंग टू सॉइल. Rabi crops can be cultivated in alluvial as well as black. Alluvial plus black. Black soil में भी आपके Rabi crops cultivate हो जाते हैं. Fun it is, which we can cultivate in that day. What about temperature? Will you keep it inside? What are you searching? बोल दो, डिस्टर्ब ना करे. टेम्परेचर क्या हुआ सनी? बड़ी अच्छी से स्माइल आई थी आपके चेहरे पर अभी. टेम्परेचर अबाउट wheat 15 to 20 is the most suitable, but it can develop into the other also. 15 to 20 degrees Celsius is the most suitable temperature. It's okay. Rainfall less than, rainfall between 70 to 90. Rainfall between 70 to, position according to book here also second, but here it will change, here it will western. राइस में हमने ईस्टर्न लिखा, व्हीट में हम लोग आगे कहां पर? वेस्टर्न. इट्स ओके. In your book it is written second, but as I am recalling it is third, but you people have told it is second. That only I am saying. Here we are talking about world, position in the world. What is the position of our country in the world? That I said, no, it is third, but you people said in book it is written second. It's okay.
चलो, that's clear? Very much clear to all of you? Okay. अब इसके अलावा एक्चुअली हमें देखना क्या है? Major areas of the wheat production, as I have mentioned here, western part. पंजाब, हरियाणा, western यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. These are the major areas है. महाराष्ट्र का पूरा नहीं. Not the complete Maharashtra, but the western part of Maharashtra where wheat is cultivated. These are the major areas where wheat is cultivated. Okay, but in minor areas, your UP, Bihar, these all different states are coming in the minor areas. We include these different regions also. Total production of wheat in our in the world, whatever the contribution of the different countries are there, India is contributing 11.7% in the world. जो टोटल वीट का 100% प्रोडक्शन हो गया पूरी दुनिया का, उसका 11.7% कंट्रीब्यूशन किससे है? फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया. इन राइस व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन? 21.2% है. याद रखिए ये डाटास. इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस we are contributing 2%. In wheat, we are contributing 11.7%. Is it fine? Very much clear to all of you? And wheat is the second staple food of our country, India. We have already covered this one. Rest, nothing is mentioned in the book, only this much topic is given. Now we are switching over towards our next crop, that is jowar. Jowar is given in our syllabus. Bajra as ragi is not in the syllabus. Maize is also not in the syllabus. So directly we will come to jowar. Third crop which is given in your book, which we have to cover, that is jowar. Not in the syllabus. ठीक है, उसको भी टेबल बना लीजिएगा. Jowar, again a kharif crop. Jowar is a कौन सी क्रॉप है? Climatic condition, hot and dry. Soil, red. Temperature, somewhere you will get it as a 35 also, both is correct. Rainfall, less than 70 centimeter. Less than 70 centimeter. Yes. दिख रहा? ज्वार, खरीफ, hot and dry, red soil, 27 to 30 degrees Celsius, less than 70 centimeter rainfall. ठीक है ना, लिख लो आप लोग ना. You are knowing the spelling. O is missing. Now it's okay. खुश अब? ज्वार क्या होता है? कहाँ? इंडिया में. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ होता है? सब भी चीज में चाइना ही रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा. नो, इंडिया इज नॉट फर्स्ट है, दैट इज यूएसए. ठीक है. The position you live in, only you write about the area or region. So here leading state is Maharashtra. Leading state कौन सा है? Maharashtra. But it doesn't mean it is only cultivated in Maharashtra. Apart from Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, these are the other areas where jowar is cultivated.
It's okay. Where jowar is cultivated. Just a minute. हेलो ओटीपी चाहिए आपको ना, एक मिनट बता रही हूँ आपको. हेलो बता रही हूँ 613282 3282. ठीक है. ओके सो टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट है यहाँ तक? क्या बोलो. वर्ल्ड में पोजीशन यहां पर जो है ज्वार का पोजीशन सेकंड ही होगा. ठीक है. बट इट इज नॉट मेंशन इन द बुक, सो लीव द पोजीशन वट एवर इज गिवन इन द बुक, बट इट इज सेकंड आफ्टर ज्वार. चलिए ठीक है, बिहार बोर्ड वाले लिखिए. आई विल नॉट राइट हियर, आई एम डिक्टेटिंग यू, राइट डाउन. बाजरा लिखो लिखो फटाफट. बाजरा. बाजरा इज अ रबी क्रॉप. बाजरा इज अ रबी क्रॉप. बाजरा रबी क्रॉप. और रबी क्रॉप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वार्म एंड ड्राई. बाजरा रबी क्रॉप. रबी बाजरा रबी क्रॉप. वार्म एंड ड्राई. वार्म एंड ड्राई. क्या हुआ ऋषभ? वार्म एंड ड्राई. soil here, red soil, arid soil, basically arid soil. Arid, ARID, arid plus red. red soil में भी कहीं कहीं पर होता है आपका. टेम्परेचर 21 to 25 degree Celsius. 21 to 25 degree. Temperature 21 to 25 degree. Rainfall less than 50 centimeter. Rainfall less than 50 centimeter. Bajra major state Rajasthan. Leading state is Rajasthan, but it is also cultivated in UP, MP, Andhra Pradesh, Karnataka. लीडिंग स्टेट इज राजस्थान. बाजरा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका राजस्थान में. ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में. ठीक है. अब उसका वो रेतीला भाग छोड़कर, डेजर्ट एरिया को छोड़ के, वेर एवर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रीजन. इट्स ओके. Leading state is Rajasthan, but it is also cultivated in other states such as UP, MP, Chhattisgarh, Jharkhand. In these areas also bajra is cultivated. It's okay. कोई बात नहीं, कोई भी आप इन लिख लीजिए, चलेगा. अब आ जाइए. बाजरा का प्रोडक्शन नंबर 1 होंगे हम लोग. बाजरा कहीं और नहीं होता है. बाजरा आपका ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में होता है, बट आई थिंक इन अवर कंट्री इट इज कल्टिवेटेड लार्जेस्ट. इट्स ओके. डन ऑल ऑफ यू. आफ्टर बाजरा आ जाइए मेज पे. बिहार बोर्ड वाले गिव अटेंशन. आफ्टर बाजरा मूविंग टू मेज. नहीं लिखो, बिहार बोर्ड वाले को लिखने दो. मेज.
खरीफ? सीजन में करेंगे बोथ, क्योंकि कुछ एरिया में ये रबी क्रॉप में होता है, कुछ एरिया में ये खरीफ क्रॉप में होता है, तो बोथ, यू विल राइट बोथ. इट्स ओके. क्लाइमेटिक कंडीशन, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, और मॉइस्ट आप लिख सकते हैं, वेट की जगह मॉइस्ट लिख दो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. MOIST, हल्की बारिश, बहुत ज्यादा बारिश नहीं, हॉट एंड मॉइस्ट. ठीक है. सॉइल, रेड सॉइल, forest soil, even alluvial soil. It can be cultivated in all this different type of soil. Alluvial soil also, red soil also, forest soil also. Hilly areas में forest soil में भी होता है, red soil में भी होता है आपका झारखंड छत्तीसगढ़ में, और बिहार यूपी में आपका alluvial soil में भी होता है. तो soil, it's okay. Many soils are there. Temperature 21 to 25. Most suitable temperature is 21 to 25 है. Temperature 21 to 25. Rainfall 70 to 100. Rainfall 70 to 100. Moderate rainfall we need. We don't want a heavy rainfall for maize. It's okay? 70 to 100. It doesn't mean in 150 rainfall it cannot survive. But 100 centimeter rainfall is enough for them. It can survive in that also. Major areas, UP, Bihar, Karnataka, Chhattisgarh, Jharkhand. Yes. USA first position in corn. India fifth position. Area तो I told you ना. Karnataka, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, बहुत है इतना. कितना स्टेट लिखने का? 3 स्टेट का नाम याद रखो, दैट्स एनफ. ठीक है, 3 स्टेट का नाम याद रखिए, काफी है उतना. इट्स ओके नाउ. मेज इज ऑल्सो कंप्लीटेड. डन ऑल ऑफ यू. Like this we have completed our food grains. One part food grain part is completed. In food grain especially cereal crops we have completed. After that in our syllabus it is pulses. In table we don't have to write anything about the pulses. Keep it in mind. नहीं लिखना है pulses के बारे में, पहले सुन लीजिए. Pulses in the world, position of India about the production. Number 1. In pulses, India is occupying first position in the production of pulses. And once we talk about pulses, here we include variety of crops. We include a variety of crops, because inside pulses not only 1 or 2 types of crops are there. There are many different types of. Some of the pulses are cultivated during the Kharif season. सुन लीजिए मुझे पहले. Some of the pulses are cultivated during the Kharif season. मैं यहां पर आपको लिख देती हूं. Kharif season के, if you want inside you can note down anywhere. Pulses which are cultivated during the Kharif season, that is your urad, मूंग. क्या हो गया? मूंगे, then after so urad, moong and which veg? Soyabean. Okay. अच्छा, soyabean is the example which is coming under the oilseeds also and inside the pulses also. Yes. इसके बीज को जब हम करते हैं तो if it is given in your book under the oilseeds it's okay, but it is coming under the pulses also. सोयाबीन के जब बीज को ही हम जब बनाते हैं, ठीक है, तो that is coming under. So these all are the kharif crops. These pulses are cultivated. Even
इवन तुअर, जिसको हम लोग अरहर कहते हैं. And tuar is a pulses, that type of pulses which is cultivated during the rabi also as well as kharif also. अरहर का दो सीजन होता है, रबी सीजन भी खरीफ सीजन भी, दोनों ही सीजन में अरहर का दाल किया जाता है. It's okay, but there are some pulses which are cultivated during a rabi season. Which are those? The most important one is gram, जिसको हम लोग चना की दाल कहते हैं. Then peas. It's okay. Rajma. Is it clear? It is cultivated as a masoor. One more pulses which is very important here, masoor. Okay. These all are cultivated during the kharif season. So some of the pulses are cultivated during the rabi season, some of the pulses are cultivated during the kharif season, so that we will not write here about the pulses name, only we will discuss regarding that. Although in your book two pulses names are given, gram and tuar. Am I right? Chana और अरहर, इन दोनों का बताया हुआ, तो मैं बता देती हूँ. अरहर खरीफ सीजन में मेंशन हुआ है और चना रबी सीजन में मेंशन किया है. That examples are given in your book. Otherwise, apart from this, there are some other different pulses also. India is the largest producer of pulses as well as the largest consumer of pulses. सबसे ज्यादा उत्पादन भी पल्सेस का इंडिया में होता है, सबसे ज्यादा खपत भी पल्सेस का कहाँ होता है? वो इंडिया में होता है. And we farmers say, we Indians say, are growing pulses in any agriculture crops because it is a leguminous crop. It's a leguminous crop. What is leguminous crop? Which is not reducing the fertility of soil, but they are collecting their nitrogen from atmosphere, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं. और 11th में शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था, याद आ रहा है आप लोगों को? नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ाया था. तो दिस इज पल्सेस क्रॉप्स आर सच टाइप ऑफ क्रॉप्स एक्सेप्ट वन क्रॉप है, दैट इज योर तुअर. इट इज एक्सेप्शन. तुअर जो है आपका उस नाइट्रिफिकेशन में नहीं आता, इसको हम लेग्यूमिनस क्रॉप में नहीं रखते हैं. इट्स ओके. और तुअर की खेती कभी जो है खेतों के बीच में नहीं होता, बल्कि इसको हमेशा आउटस्कर्ट एरियाज में, फार्मलैंड के बाहरी एरियाज में लगाया जाता है. जैसे मेड़ हो गया, जो खेत के जो मेड़ हो गया, उसका जो साइड का बॉर्डर हो गया, वहां पर उसके पौधे को लगाया जाता है. इसकी जो है बुशेज होती हैं, बाकी सबकी मटर का, चना का छोटी छोटी आपकी झाड़ियां होती, छोटे आपके वो पौधे होते हैं. बट अरहर का आपका पौधा बड़ा होता है, झाड़ी इसकी होती है जिसके ऊपर उसका फल लगता है. समझ में आ रहा? तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पल्सेस में. रेस्ट ऑल आर ऑफ सेम नेचर. इट्स ओके. इज इट क्लियर? आप आ जाइए. हाँ बोलो. इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है. सबसे ज्यादा इंडिया में ही पल्सेस होता है. पल्सेस पहले दूसरी कंट्रीज में होती नहीं थी, इंडिया को देख के बहुत सारी कंट्रीज में ये होना शुरू हो गया. ठीक है. और हम इंडिया में नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया हर जगह पे पल्सेस कल्टीवेट करते हैं और किसी न किसी फॉर्म में पल्सेस को लेते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. महाराष्ट्र आपका अरहर का है, मध्य प्रदेश आपका अरहर का है, अरहर के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है. ठीक है. फिर आपका यूपी है, यूपी में भी अरहर बहुत ज्यादा होता है. ये सारे स्टेट है जहां पर अरहर का दाल सबसे ज्यादा होता है. हाँ. आपका इसके बाद फिर चना है. आप बुक के अकॉर्डिंग आ जाइए. और अरहर मैंने बताया आपका खरीफ क्रॉप में होता है, जो आपके बुक में भी मेंशन किया हुआ, खरीफ सीजन में किया हुआ है. अरहर हम इंडिया में कंज्यूम, ईस्टर्न पार्ट में अरहर कंज्यूम करते हैं, वेस्टर्न पार्ट के लोग अरहर को कंज्यूम नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं. मार्जिनल लैंड साइड का, मार्जिन एरिया, बाहर का, खेत का बाहरी एरिया का, मैंने अभी बताया ना. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, हमने यहाँ पर क्रॉप्स को कल्टीवेट किया. ठीक है. तो हम अरहर के पौधे को कहाँ लगाएंगे? हम इन एरियाज में लगाएंगे. यहाँ पे हम पौधा लगा के छोड़ देंगे, फिर इसकी बड़ी बड़ी झाड़ियां होंगी. ये 3 फुट 4 फुट बड़े पौधे होते हैं, जिसके अरहर की जो है छोटी छोटी फली होती है, लगता है उसके अंदर से वो दाल निकलता है. सॉरी, आ रहे हैं, ग्राम में भी आ रहे हैं. अरहर, इज इट क्लियर अबाउट द अरहर? अरहर वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो.
इंडिया का सबसे ज्यादा यूज ईस्टर्न पार्ट में अरहर का होता है, फिर सदर्न पार्ट में होता है। वेस्टर्न पार्ट के लोग अरहर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट के लोग आपका मसूर एंड चना आपको यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्राम आपका सबसे ज्यादा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, इन एरियाज में आपका चने की खेती सबसे ज्यादा होती है। इट्स ओके, इट डजंट मीन कि इन अवर एरियाज इट इज नॉट कल्टिवेटेड। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे चने का खेती कम होता है। पता नहीं क्या, देख लीजिए। बिहार का पोजीशन छोड़ दीजिए, फिर इतना स्टेट वाइज पोजीशन नहीं करना है। इट्स ओके। तो दिस इज अबाउट दैट, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड as a pulses in our country, ठीक है। It is also having a rich source of protein. It is also providing, that's why it is used. And a gram is cultivated in our country during the Rabi season. ये रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है आपका। Fine it is. Is anything extra given? I think only in the 4 to 5 line it is hardly given about the gram and tuar. Pulses complete हुआ? Clear है pulses के बारे में? No, if you are having any doubt, you can ask. बोलिए। राहर और अरहर बिल्कुल एक ही होता है। हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज उसको राहर कहते हैं, ठीक है। और सभ्य भाषा में, सिविलाइज लैंग्वेज में उसका ऑफिशियल अरहर है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे या आप पंजाब हरियाणा में जाओगे, वहां लोग अरहर भी नहीं समझेंगे। दे आर कॉलिंग इट इज तुअर, दे कॉल इट एज तुअर। इसलिए बहुत सारी आप पैकेट्स, जो पैक आपका रैपर के अंदर आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है तुअर दाल, अरहर दाल नहीं लिखा रहता है। और राहर हमारे बिहार में ही बोलते हैं। ये इसका बिगड़ा हुआ है जस्ट, ठीक है ना। इतना कौन बोले जा अरहर, चलो भाई अ हटा दो, सिर्फ राहर हो गया, वो बात वही हो गई, ठीक है। बोलो बोलो, इज इट फाइन? ऑयल सीड्स करा दूं आज? छोटा ऑयल सीड्स करा सकते हैं ना, ऑयल सीड्स कर लेते हैं। लिखना नहीं ऑयल सीड्स के बारे में भी, टाइम हो गया और नहीं पढ़ना है। अभी 10 मिनट है, बताओ टाइम नहीं हुआ। किसका? पल्सेस का क्या लिखोगे बेटा? पल्सेस का कुछ नहीं लिखना है। पल्सेस कुछ आपके खरीफ के, कुछ आपके रबी के हैं, तो आप पर्टिकुलर पल्स पे जाना पड़ेगा। तो फिर अरहर और तुअर जो है, उन दोनों के बारे, सॉरी तुअर एंड ग्राम है, उन दोनों के बारे में कहो तो मैं बता देती हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ। लिखो, ग्राम के बारे में लिखो, लिखो लिखो, ग्राम के बारे में लिखो। ग्राम सीजन रबी, ग्राम GRAM, ग्राम, ग्राम मीन्स चना। सीजन इज रबी, सीजन रबी, रबी क्रॉप इट इज। क्लाइमेटिक कंडीशन, व्हाट डू यू थिंक? चना का कैसा चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट, ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट। बहुत ठंड भी नहीं चाहिए, बहुत ठंडा भी पड़ जाए तो पाला मार देता है। सुना है आप लोगों ने? फसल को पाला मार गया, यानी कि ठंड लग गई उसको, ठीक है। पौधों को भी ठंड लगती है, इसलिए वार्म एंड मॉइस्ट है। हल्का मॉइस्चर भी चाहिए, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म चाहिए, ठंड नहीं चाहिए। ओके, सॉइल अलुवियल, सॉइल अलुवियल। टेम्परेचर 15 to 25, हाँ 15 to 25। Rainfall up to 100 centimeter, rainfall up to 100 centimeter। एरियाज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न साइड। जहां गेहूं वहीं चना, क्या बेटा? आंध्र प्रदेश भी, हाँ
आंध्र प्रदेश भी एक है। इट्स ओके, कंप्लीटेड। अरहर भी लिखना है, लिखो लिखो लिखो, अरहर लिखो। अरहर खरीफ, अरहर का सीजन क्या लिखेंगे? खरीफ। अब खरीफ हो गई तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा हो गया? बट इसको ह्यूमिड नहीं चाहिए, मॉइस्ट। ठीक है, अरहर को ह्यूमिड नहीं चाहिए, बहुत रेनफॉल नहीं चाहिए, मॉइस्ट, वार्म एंड मॉइस्ट, मॉडरेट। मॉडरेट भी लिख सकते हैं आप, चलेगा, और या फिर आप वार्म एंड मॉइस्ट लिख लीजिए, वो चलेगा। इट्स ओके। soil, red soil also, alluvial soil also, both are suitable. Red and alluvial, soil में red and alluvial, red and alluvial. After soil here, temperature above 25, temperature above 25, rainfall 100 centimeter, rainfall 100 centimeter, area कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी। ठीक है, यूपी इज ऑल्सो लीडिंग, यूपी में भी अरहर बहुत होता है। यूपी हो गया, अरहर कंप्लीटेड। ऑयल सीड्स पे आ जाए आप। अच्छा, अब टाइम नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट अदर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास।